हाँ सोनू, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर, आ आ रही। रही है जी। हाँ सर। एफर्ट, ए फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, यानी लोड को उठाने के लिए जो तुम इनपुट दोगे, दैट विल बी एफर्ट। कितना फोर्स लगाओगे। सेकंड मैकेनिकल, थर्ड वन इज द मैकेनिकल एडवांटेज. It is defined as the ratio of weight lifted to the effort applied. Mechanical advantage equal to W upon P. Velocity ratio, it is the ratio of distance moved by effort to the distance moved by load. यानी तुमने कोई एफर्ट लगाया, एफर्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से लगाया, वो कितना मूव किया और उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट के अंदर आपका लोड कितना ऊपर मूव कर रहा है, that ratio will be called velocity ratio. If effort moves by distance y and the load moves by distance x, then velocity ratio will be input of a machine. अब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी रेशियो है, वेलोसिटी रेशियो के इक्वल में तुम्हें y अपॉन x लिखना है, इक्वल्स टू कंट्रोल p. दिस विल बी वेलोसिटी रेशियो y अपॉन x. यहाँ पे ये जो है इसको कट करते हैं. It is the ratio of distance moved by the effort to the distance moved by the load. So velocity ratio will be equals to y upon x. Input of machine. मशीन को इनपुट किससे दिया जा रहा है? With the help of effort. तो effort कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? If effort is p and distance travel by effort is y, then the input of machine will be p multiply y. So it is the work done on a machine. In a lifting machine, it is measured by the product of effort and the distance moved by effort. That is p multiply y. That is the input of the machine. Similarly, there will be output of machine. So output क्या हो रहा है? Output is coming in terms of load lifted. If the load is W and load travels by distance x, then output of the machine will be W multiply x. So it is the actual work done by the machine. In a lifting machine, it is measured by the product of weight lifted and the distance through which it has been lifted. So W multiply x will be output of the machine. Then efficiency of the machine. So efficiency क्या होती है? Output upon input. So it is the ratio of output to the input of a machine. So output is the W multiply x and input is P multiply y. So इसको हम लिख सकते हैं mechanical advantage upon velocity ratio. So efficiency of any machine will be equal to the ratio of mechanical advantage to the velocity ratio. Machine efficiency will be always less than 1. So the work input is always greater than the useful work. So that is Py will be always greater than Wx. So y upon x means velocity ratio will be greater than always mechanical advantage. If velocity ratio and mechanical advantage are equal, then the efficiency of the machine will be 100%. And that machine is called ideal machine. In a simple machine, a small force when applied through a large distance, it overcomes a large force through a small distance. Ideal machine. If the friction losses are neglected, efficiency of machine will be 100%. जो भी तुम्हें बताया, when velocity ratio equals mechanical advantage, then the machine will be termed as ideal machine. It means their friction losses are neglected in ideal machine. So in case of ideal machine, Py equal to Wx and velocity ratio will be equal to mechanical advantage. So efficiency will be equal to 1.
इन केस ऑफ, ये जो साइन है ये गलत है यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू साइन, सो करेक्ट इट. आइडियल एफर्ट एंड आइडियल लोड, ये दो टर्म्स है, आइडियल एफर्ट एंड आइडियल लोड. आइडियल एफर्ट किस केस में होगा? जब मशीन तुम्हारी आइडियल होगी. और आइडियल लोड कब होगा? जब तुम्हारी मशीन आइडियल होगी. तो आइडियल मशीन के केस में जो लोड अप्लाई किया जाएगा, एफर्ट अप्लाई किया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड आइडियल एफर्ट. और जो लोड लिफ्ट होगा दैट विल बी आइडियल लोड. सो कंसीडरिंग एन आइडियल मशीन हैविंग 100% एफिशिएंसी, in that case mechanical advantage will be equal to velocity ratio. And mechanical advantage क्या होता है? W upon P, that is equal to velocity ratio. Here the P is ideal effort. P is termed as ideal effort because mechanical advantage equal to velocity ratio and machine efficiency is 100%. So here effort is ideal effort. So I replace this P with P ideal, that is equal to W upon VR. But then for an actual machine in which friction is present, so in that case efficiency of the machine will not be 100%. So in that case P will be P actual. So efficiency equals to mechanical advantage upon velocity ratio. I replace mechanical advantage with W upon P multiply 1 upon VR. Here effort will be actual effort. This effort will be termed as actual effort because machine have friction losses. So P actual will be W upon efficiency multiply 1 upon VR. तो अब इसके अंदर ज्यादा कौन सा होगा? P actual ज्यादा होगा या P ideal ज्यादा होगा? Obviously P actual will be more because friction effort ज्यादा ही देना पड़ेगा. You have to apply more effort. Multiply by V upon VR. क्योंकि ईटा सर 1 से कम होगा ना एक्चुअल के लिए. तो अब क्या इसके कारण क्या हुआ? फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ? हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा टू ओवरकम द फ्रिक्शन व्हाइल लिफ्टिंग द लोड. सो P friction will be P actual minus P ideal. This P friction is the effort lost in friction. Effort lost in friction. So the value of effort lost in P friction comes this one, W upon VR multiply 1 upon efficiency minus 1. So this equation shows friction in terms of effort. Similarly, सेम प्रोसेस किया जा सकता है लोड के लिए. सेम प्रोसेस लोड के लिए निकालना है हमें, W फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है कि फ्रिक्शन के कारण जो लोड लिफ्ट होगा वो कितना कम लिफ्ट होगा. एक्चुअल मशीन होगी तो लोड लिफ्ट ज्यादा होगा, बट ड्यू टू फ्रिक्शन लोड लिफ्टेड विल बी लेस. So similarly for a given effort, considering an ideal machine having 100% efficiency, then mechanical advantage equal to velocity ratio. Here W will be ideal load. W will be considered as ideal load. Here W is ideal load. So W ideal will be equals to P multiply VR. And for actual machine which have some friction losses, in that case efficiency will be equals to mechanical advantage upon velocity ratio and replacing mechanical advantage with W upon P. So here load, W will be actual load. W will be termed as actual load. So replacing W with W actual. So W actual comes efficiency multiply P multiply VR. So इसमें W actual ज्यादा होगा या W ideal ज्यादा होगा? वो करना आइडियल ज्यादा होगा ना सर. आइडियल ज्यादा होगा ना. आइडियल ज्यादा होगा. आइडियल इन केस ऑफ आइडियल W विल बी, इसमें ज्यादा लोड लिफ्ट किया जाएगा. तो इसमें ड्यू टू फ्रिक्शन कितना लोड वेस्ट हो गया उठाने में? W आइडियल माइनस W एक्चुअल. W आइडियल माइनस W फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू W आइडियल माइनस W एक्चुअल. So then the decrease in load lifted due to friction. फ्रिक्शन के कारण लोड के अंदर कितनी कमी आई उठाने में?
W friction equal to W ideal minus W actual. That comes P multiply VR minus efficiency multiply P multiply VR. So W friction comes P multiply VR bracket 1 minus efficiency. So this equation shows the friction force of the machine in terms of load for a prescribed effort. तो ये दोनों इक्वेशन तुम्हें ध्यान रखनी है, W फ्रिक्शन की भी और P फ्रिक्शन की भी. Then comes reversible and irreversible machine. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों टर्म्स क्लियर है. रिवर्सिबल मतलब जो दोनों डायरेक्शन में चले, इरिवर्सिबल मतलब ओनली वन डायरेक्शन. इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे कुआं है, कुएं के ऊपर पुली लगी होती है, उसमें हमने पानी निकाल रहे हैं, हमने तो क्या किया, लोड अप्लाई किया, एफर्ट अप्लाई किया, तो तुम पानी ऊपर आया. यदि मैं एफर्ट को रिमूव कर दूं तो क्या होगा, पानी की बाल्टी वापस कुएं में चली जाएगी. सो दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड रिवर्सिबल मशीन. यदि मैं लोड एफर्ट को रिमूव कर देता हूं और लोड वहीं का वहीं रहता है, तो इसका मतलब दिस इज इरिवर्सिबल मशीन. So when the machine is capable of doing work in reverse direction due to its load, as the effort is totally removed, the machine is said to be reversible. उसी एग्जांपल, यानी मैंने एफर्ट लगा के कोई लोड उठाया, लोड लिफ्ट किया, यदि मैं एफर्ट को रिमूव कर दूं, यदि लोड वापस रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करे, तो क्या होगा, दैट मशीन इज कॉल्ड रिवर्सिबल मशीन. As soon as the effort is removed, the work done on the load will be input rather than output, and here the input will be equal to friction losses. When the machine is not capable of doing any work in the reverse direction after the effort is removed. हाँ सर, ऊपर वाला समझ में नहीं आया सर. As soon as the effort is removed, ऊपर वाला जो सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें बताया मैंने, एक पुली है, कुएं के ऊपर पुली जो तुमने देखी है, उससे हम पानी निकाल रहे हो, एफर्ट लगा रहे हैं, एक तरफ से रस्सी खींच के क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं. तो क्या हुआ, पानी की बाल्टी ऊपर आई. यदि तुम एफर्ट को रिमूव कर दो, रस्सी को छोड़ दोगे, तो क्या होगा, पानी की बाल्टी वापस नीचे चली जाएगी. जो तुमने वर्क किया वो रिवर्स हो गया, वापस पानी के अंदर चली गई, तो मशीन क्या हो गई, रिवर्सिबल मशीन. रिवर्सिबल मशीन का एग्जांपल देता हूँ. स्क्रू जैक देखते हो तुम, स्क्रू जैक है, स्क्रू जैक से हम कोई गाड़ी वगैरह को उठाते हैं, पंचर हो जाती है, उस केस में क्या होता है, उसको उठाते हैं गाड़ी को, तो उस केस में क्या होता है, हमने एफर्ट लगा के गाड़ी को उठा तो दिया, मैं एफर्ट को रिमूव कर देता हूँ, तो गाड़ी नीचे आती है क्या, गाड़ी वापस नीचे आती है क्या? यस सर. नहीं आती ना, वो वहीं रहती है जब तक मैं उसको वापस मैं खुद रिवर्स नहीं करूंगा मेरे एफर्ट को, तब तक वो नीचे नहीं आएगी. तो दैट मशीन इज कॉल्ड irreversible machine. So when the machine is not capable of doing any work in the reverse direction, for example in this case example will be screw jack. So after the effort is removed, then the machine is called a non-reversible or irreversible or self-locking machine. इसको irreversible machine को और क्या बोलते हैं, सेल्फ लॉकिंग मशीन. जो स्क्रू जैक क्या होता है, अपने आप लॉक हो जाता है. अब कंडीशंस ऑफ रिवर्सिबल मशीन. In an irreversible machine, some work done is lost due to friction. जो कुछ वर्क होगा वो फ्रिक्शन में लॉस हो जाएगा उसका. So in that case frictional work will be input minus output. इनपुट और आउटपुट में जो डिफरेंस है, that is the friction work. If input is equal to output, then the efficiency of the machine will be 100%. But in actual machine, input is not equal to output always. So friction work is equal to input minus output. That is Py minus Wx. But on removal of effort, the load will not fall if the friction work is more than the output of the machine. यानी मैं यदि एफर्ट को रिमूव करूं तो लोड वापस नीचे नहीं आएगा यदि फ्रिक्शन वर्क आउटपुट से, मशीन के आउटपुट से ज्यादा है. सो दैट इज Py minus Wx
will be greater than WX. इस लाइन का, ऊपर वाली लाइन का मतलब क्या हुआ, जो फ्रिक्शन वर्क है that will be more than output of the machine, then the load will not fall. इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, then Py will be greater than 2WX, और सिंप्लीफाई करें, WX upon Py will be less than 1/2. WX upon Py is, WX upon Py क्या होता है, एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी will be 1/2 in case of irreversible machine. यदि मशीन irreversible है तो उसकी एफिशिएंसी 50% से कम होगी. So thus the condition for irreversibility or self-locking of a machine is that the efficiency of machine should be less than 50%. If efficiency of machine is greater than 50%, the machine will be reversible. If the machine efficiency exceeds 50%, the machine would be reversible. The law of machine. ये तुम एक डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में देख रहे हो, एक तरफ लोड है एक्स एक्सिस पे और दूसरे एक्सिस पे एफर्ट है. तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन शो किया जाता है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ मशीन. So the law of machine prescribes the relationship between the effort applied and load lifted. Law of machine prescribes the relationship between effort applied and the load lifted. If P is the effort to lift load W, then for a machine with constant velocity ratio, the law of machine is given by P equals to mW plus C. So it is the equation of straight line, where m is the slope of the line, c is this intercept. M is the slope of straight line, that denoted by del P upon del W. Here, this is the ideal machine. This line shows ideal machine where c is 0, where the value of c is 0. c यहाँ क्या शो कर रहा है, यदि मशीन एक्चुअल मशीन है, मशीन एक्चुअल मशीन है, तो क्या होगा, मैं यदि लोड लगाऊंगा, यदि मैं लोड अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, एफर्ट अप्लाई करता हूं, एफर्ट अप्लाई करूंगा तो लोड क्या, यहां तक मैं यदि एफर्ट अप्लाई करूं इस सी वैल्यू तक, तो लोड लिफ्टेड विल बी 0. लोड लिफ्टेड विल बी, इस सी के ऊपर कोई लोड लगाऊंगा, पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा इन केस ऑफ एक्चुअल मशीन, उसके बाद ही ये लोड ऊपर उठेगा, अदरवाइज लोड लिफ्टेड विल बी 0. सो फॉर एन ideal machine, the straight line passes through the origin and intercept c is 0, and for an actual machine the straight line has an intercept c on the p axis, and this intercept represents the effort required to overcome the friction. What c represents? Effort required to overcome the friction. If the effort applied is less than c, then the load will not be lifted. यदि p की वैल्यू c से कम हुई तो एफर्ट लोड नहीं उठा गया. The slope of the line is constant and it shows the coefficient of friction. ये slope m है, वो क्या शो करेगा, coefficient of friction को शो करेगा, and it may be recalled as mechanical advantage equal to W upon P, and P is equal to, हमने law of machine निकाला, that is equal to mW plus C. इसको और सिंप्लीफाई किया, 1 upon m plus c upon W. So by increasing the value of W, the value of factor c upon W decreases. यदि मैं W की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊं तो इस c upon W की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और ये इतनी डिक्रीज हो जाएगी, यदि और इंक्रीज कर देता हूं तो हम इसको नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं. उस केस में क्या होगा, mechanical advantage will be equals to 1 upon m. देखो, by increasing the value of W, the value of factor c upon W decreases, and that in turn increases the mechanical advantage. Mechanical advantage की value बढ़ती जाएगी, and the maximum or limiting value of mechanical advantage will be 1 upon m. ये 0 हो जाएगा,
यदि ये बढ़ता जाएगा तो अल्टीमेटली मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा 1/m, एंड इन दैट केस इट इज कॉल्ड मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। और इसको दूसरा टर्म और दिया जाता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। यदि कहीं क्वेश्चन में आए व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, इट मींस he is asking maximum mechanical advantage. So the maximum value of mechanical advantage will be 1/m when Cw tends to 0. So efficiency is equal to mechanical advantage upon velocity ratio. So W upon, replacing mechanical advantage with W upon P, replacing P, value of P is equal to mW plus C. Again simplifying, m plus C upon W multiply VR. So this line, this is the relationship which is the hyperbolic nature, and the graph between efficiency and load comes with this line. This line efficiency, ये line है, इसकी equation this comes. So obviously the relationship between efficiency and W is hyperbolic, shown in figure. So by increasing the value of W, again यहाँ पे भी इस W की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये C upon W टेंड्स टू 0 होता जाएगा धीरे धीरे। इस केस में एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो एफिशिएंसी होगी दैट विल बी मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1/mVr। इस केस में जब ये Cw टेंड्स टू 0, Cw की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस केस में efficiency of the lifting machine will be maximum efficiency and that is equal to 1/mVr. अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ये आज का चैप्टर खत्म है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे। सर हाँ सर, जो एक वाटर पंप होता है ना अपने, हाँ सर वाटर पंप होता है ना, पानी की मोटर, पानी का पंप, हाँ सर, उससे अगर अपन जैसे पानी मान लो ऊपर टंकी में चढ़ा रहे हैं, बट अगर अपन उसका स्विच ऑफ कर देते तो सर जो वाटर पंप के अंदर वेल लगी हुई होती है उस वजह से पानी वापस नीचे जाता नहीं है, उसी जगह रुक जाता है। क्या चीज? तो पानी की मोटर के अंदर सर वॉल लगी हुई होती है ना, जिस वजह से पानी वापस बैकवर्ड फ्लो नहीं होता है, उसका सिर्फ फॉरवर्ड फ्लो ही होता है अगर बंद भी हो जाए। तो सर वो भी सेल्फ लॉकिंग हो गया, बट उसकी एफिशिएंसी थोड़ी ना 50% से कम। तो वो मशीन थोड़ी है, वो वाल्व है, उसको बोलते हैं, उसको नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं। अच्छा, उसको नॉन रिटर्न वाल्व होता है। उसमें क्या होता है, पानी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं होता। अच्छा, तो वो वाल्व के केस में आएगा, वो वाल्व वो केस वाल्व है। पंप मशीन है, पंप क्या है तुम्हारी मशीन है, वो क्या कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी को, तुमने पंप को क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। मैकेनिकल एनर्जी फिर वो हाइड्रोलिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है उस वाटर को। और टरबाइन जो होती है, टरबाइन इसका रिवर्स होता है, टरबाइन पंप का रिवर्स होता है। टरबाइन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी देते हैं और हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। समझो टरबाइन में क्या हो रहा है, टरबाइन में हाइड्रोलिक एनर्जी देन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पंप में क्या हो रहा है, पंप में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल में, और मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक में। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। अब कल हम फिर क्लास लेंगे, कल 9 बजे। कल वैसे सर जन्माष्टमी की छुट्टी है तो लोगे ना? हैं? अपनी अटेंडेंस डाल दे, क्या छुट्टी के दिन नहीं ले सकते क्या? बताओ, लेनी हो तो तुम बताओ, लेना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं तो दिक्कत क्या, मेरे को पता लगा कि तुम्हें लग रहा है कोर्स पीछे चल रहा है क्या? नहीं सर, सही चल रहा है, मैकेनिक्स का तो बहुत ज्यादा सही चल रहा है। सही चल रहा है, ऐसे स्लो तो नहीं है, पर फास्ट नहीं है, नहीं बता देना भाई। सबसे सही है, सबसे ज्यादा फास्ट है।
सबसे ज्यादा फास्ट है तो धीरे करना है। हाँ नहीं नहीं सर सही चल रहा है। सही चल रहा है। तुम बता देना नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ानी हो तो हम बढ़ा देंगे, बता दिया करो मेरे को पहले कि सर और क्लास ले लो। नहीं सर ऐसा नहीं हो कि है ना, कभी भी कोई हो तो मेरे को डायरेक्ट बता दिया करो। नहीं सर मतलब एक मंथ में यूनिट के हिसाब से तो सही चल रहे हैं ना। सही है ना। चलो हाँ सर। लास्ट टाइम हमने एक्स्ट्रा क्लासेस काफी ली थी, इसलिए 10-11 एक यूनिट हो गई है मेरे ख्याल में। ये नहीं सर ये वाली यूनिट तो छोटी है। छोटी है ये, इसमें भी अभी आगे हो रहा है। अभी तो लिफ्टिंग मशीन है इसमें, शायद बेल्ट पुली भी है इसके अंदर ही। बेल्ट और पुली भी इसी के अंदर हाँ आएगा। वो ड्राइविंग सेकंड सिस्टम ऑफ पुलीज, फ्रिक्शन भी आएगा इसमें भी फ्रिक्शन भी है। काफी बड़ी फ्रिक्शन यूनिट का है तो ये। अलग है शायद सर। अलग है क्या? यस चलो सर, देखते हैं ना। फ्रिक्शन अलग है। पर फ्रिक्शन भी इसी के हाँ अंदर आ सर। जाएगा, बेल्ट पुली भी आ जाएंगे। हाँ ठीक सर। है, ओके। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।